Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a new chapter of your chemistry that is called metals and non-metals. My dear students, we already have finished the previous chapter, that is language of chemistry, and in that chapter we have discussed what is chemical reaction, how we can say chemical reaction is proceeding, what are chemical equations, what are its types, and how we can make a chemical equation reactive. We have discussed those topics in the previous chapter. Now my dear students, this is another lecture, this is another chapter, that is metals and non-metals, and this is very important for you people, my dear students. You focus on this chapter, this is very important. Metals and non-metals. My dear students, both metals and non-metals, they are elements. They are elements. And dear students, you know, almost 118 elements are present in our periodic table. What do you mean? What is element? Element is a substance which is made of only one kind of atoms. They are made of same kind of atoms. ये एक ही किस्म के atoms के बने होते हैं. For example, कार्बन की बात करते हैं. कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन है ओवरऑल ये क्या नॉन, ये एक एलिमेंट है. ये बना होता है सेम किस्म, सेम टाइप ऑफ एटम्स का. तो इन आवर पीरियोडिक टेबल 118 elements are present. Some are metals, some are non-metals, and we will move some are metalloids. Some are metalloids. हम ज्यादातर बात करेंगे यहाँ पे metals and non-metals की. Majority among 118 elements, majority of the elements are metals. Almost 93 elements are metals and rest are non-metals and some are metalloids. Some metalloids are arsenic and germanium. These are metalloids. Whose properties lie between metal and non-metal. And usually, my dear students, I will give an example. These metalloids are semiconductors. They are semiconductors because metals are good conductors, they are bad conductors, they are semiconductors. This means their properties lie between metal and non-metal. Have you got this point? I have told you that in our periodic table 118 elements are present. Some are metals, some are non-metals, and some are metalloids. And majority of the elements are metals. That's 93 elements are metals. First of all, we will explain what is metal. What is metal? आपने previous year classes में पढ़ा है. Metals are hard, they are malleable, they are ductile, but they are their physical properties. वो इनकी physical property है. अगर आपको metal explain करना होगा, असल में metal किसको कहते हैं? यूं जिगर ध्यान रखें इधर. metal किसको कहते हैं? metal. metal किसको कहते हैं? आप याद रखिए. Metals are those elements which have tendency to lose electrons. Metals हम उन elements को कहते हैं जिनको टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की. आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? क्या मैंने कहा? मेटल्स आर elements which have tendency to lose electrons. मेटल वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव. उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव. That is why metals are also called as electropositive elements.
क्या जिगर, इसीलिए हम मेटल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। Why? Because they have a tendency to lose electrons. इनको टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जिगर में किनको, मेटल्स को। Why? अगर आपको कोई बोलेगा why they lose electrons, why they lose electrons, आप कहोगे in order to attain stability. They lose electrons. They lose electrons in order to attain stability. In order to attain stability. या in order to attain stability, that is nearest noble gas configuration. आज ये चाहते हैं, कोई कहेगा कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जिगर में आप कहोगे ये इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं बिकॉज ये अटेन करते हैं, ये चाहते हैं कि हम स्टेबल बने, या मैंने यहां पे लिखा इन ऑर्डर टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि नोबल गैसेस हम केमिस्ट्री में मानते हैं ये स्टेबल, लाइक हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रान है ना, दे आर नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, they are completely filled, they follow octet rule, they follow octet rule. Are you getting, my dear students? Now कोई कहेगा why metals lose electrons, what you will say, you will say in order to attain stability, because हर कोई चाहता है कि मैं stable बनूं, metals भी चाहते हैं कि हम stable बने, that is why they lose electrons. I will give you an example. How? For example, sodium. For example, sodium. Sodium has atomic number 11 and its distribution of electrons is, I have already told you regarding the shells. In first shell 2 electrons are present, and in second shell 8 electrons, and in third shell 1 electron is present. First shell contains 2 electrons, second shell 8, and last shell 1 electron. My dear students, this shell has a need of 7 more electrons. इसको स्टेबल होने के लिए अभी 7 इलेक्ट्रॉन जरूरी है ना? तो आप मैं बोल रहा हूं लास्ट शेल में इसको ऑक्टेट फिल करना है, ये कैसे स्टेबल होगा? या तो इसको 7 जरूरी है, या तो इसको 7 लाने हैं, या तो म्यून को ये वाला लॉस करना है। ये लॉस ही करेगा ये वाला, जब ये वाला ये लॉस करेगा इस सोडियम पे चलेगा चार्ज Na पॉजिटिव। क्या चलेगा? चार्ज Na पॉजिटिव। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्यों किया? स्टेबल बनने के लिए। तो देखा ना मैंने, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, तो बना Na पॉजिटिव। क्या बना? Na पॉजिटिव। जिगर में समझ आया? तो अब ये जब इसका मतलब है एक एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये कन्वर्ट हो जाता है आयन में। किसमें? आयन में। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन आयन किसको कहते हैं? अनचार्जड स्पीशीज, जिसके पास कोई चार्ज है। चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इस वाले पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम बोलते हैं कैटायन। तो मैं जिगर चलो Mg double positive, Ca double positive, beryllium double positive, lithium positive, they all are metals because they have lost their electrons. अब जो पॉजिटिव जो कैटायन में कन्वर्ट होगा ऑलरेडी उसने म्यून ओवर क्या किया होता है? उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते हैं, लूज किए होते हैं। समझ आए? बात सुनिए, ये 281 एक्चुअली ये ऐसे है। It is first shell, it is second shell, it is third shell. First shell में कितने हैं? 2, दूसरे में और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। 3 shells are present. This is called the last shell, or we can say it is called a valence shell.
कॉल्ड वैलेंस शेल। म्यून जब इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं या गेन करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से लूज किए जाते हैं या पकड़ता भी लास्ट शेल, समझ आई हो। और इसको क्या बोलते हैं, लास्ट शेल, वैलेंस शेल। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं लास्ट शेल में, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। What are valence electrons? Valence electrons are those electrons which are present in the last shell, which are present in the valence shell। तो म्यून सोडियम की शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लास्ट शेल से। किससे? लास्ट शेल से। तो जब इसने अब लॉस किया, अब कितने शेल रहे सोडियम में? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में कितने हैं? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है? बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। किसने? सोडियम ने। आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? तो दिस वाज अबाउट मेटल्स। एक और एग्जांपल मैं दूंगा यहां पे आपको। दिस इज कॉल्ड लिथियम। एटॉमिक नंबर इज 3। First shell will contain 2 electrons and second shell will contain 1 electron. How it will become stable? By losing this electron, and automatically it will follow duplet rule, because it is also noble gas configuration, because helium has atomic number of 2, it is stable. Now it will lose electrons, it will get in lithium positive, and now lithium positive has only 2 electrons. There is a formation of cation. यहाँ पे cation बना। What is cation? Positively charged ion, वो ion जिसका positive charge है। इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे म्यून। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर इज 12, 2, 8 and 2. Now how many electrons are present in last shell? 2. How it will become stable? Either to gain 6 electrons, because R तब आएंगे, because octet rule जिसको बोलते हैं, last shell will contain 8 electrons. It has need of 6 electrons. It has need of 6 electrons. Yeah, one thing another is that it has to lose these 2 electrons. या तो इसको इस last shell से 2 electron lose करना है। क्यों किया ऐसे? 2A2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये बनाएगा Mg डबल पॉजिटिव। तो ये भी कहता है लेकिन चार्ज 2 है, तो ये स्टेबल बना। Mg डबल पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। समझ आया तो बंधु? तो आपको समझ आया मेटल्स इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करते हैं इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। समझ आएगा? अब आप जनरली सर हम कैसे पहचानेंगे? चलो जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम कैसे पहचानेंगे, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। लेकिन आप बच्चों, आप छोटे बच्चों, अभी आप याद रखो, हायर स्टडीज में नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा यूजुअली, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, यूजुअली इन मेटल्स 1, 2, 3 valence electrons are present in last shell, except हाइड्रोजन एंड हीलियम। जिगर में अगर आपको कोई मेटल पहचानना होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे हैं, बेरिलियम, लिथियम, बहुत सारे। अब आपको मेटल पहचानना है, हार्डनेस से तो नहीं पहचानेंगे, बिकॉज फिजिकल कैरेक्टर से भी पहचानते हैं मेटल को, लेकिन सबसे बेहतरीन है कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम पहचानते हैं। अगर लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यू से इट इज मेटल। अगर 2 होंगे तो मेटल, 3 होंगे तो आप मेटल, 1, 2, 3 तक आप कहोगे इट इज मेटल। मगर इसमें भी एक्सेप्शन है। एक है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है बट स्टिल इट इज नॉन मेटल। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है बट स्टिल इट इज नॉन मेटल। बट यही 2 लिमिटेशंस है इसकी, यही 2 एक्सेप्शंस है इसकी, बाकी हर किसी मेटल में अप्लाई होता है। जिगर में समझ आ रहा है क्या? मेटल्स के अगर आपको मेटल कोई देगा, पोटेशियम है, बोलो मेटल है कि नॉन मेटल है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 90, 2, 8, 8 और लास्ट शेल में 1 अर्थ 2881। लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। आप लोग भी इट इज मेटल, लॉस करेगा, 7 जरूरत है अभी। इसी तरह बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर है 4, 2, 2। लास्ट शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मेटल है। तो
क्या क्या याद रखा आपको? इन मेटल्स इन देयर लास्ट शेल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जिगर में आर यू गेटिंग मी? आप समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ शाबाश। इसके बाद ये अच्छे से समझ आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट मेटल्स। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नॉन मेटल्स इन अनदर लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।